The elephant reached the outskirts of our town. Breaking the fences down like matchsticks, he would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. तो यहाँ पे क्या बताया पहले तो कि उन्होंने कैसे bushes को destroy कर दिया, creepers को destroy कर दिया. अब क्या बता रहा है कि वो जो elephant था वो धीरे धीरे हमारे town की तरफ आने लगा. And town में जो सारे fences लगे थे ना, जो जालियां लगी होती है fences, उन्हें उसने कैसे ब्रेक कर दिया. सपोज उसके लिए तो कोई मैच स्टिक हो, इधर मैच की हम बोलते हैं ना कांडी, जो माचिस की कांडी हो, मैच स्टिक, उसके जैसे उसने तोड़ दिया. ही वुड कंटिन्यू. फिर वो क्या बोले कि उन्होंने वो एलिफेंट क्या आया, वो मेन रोड के तरफ आया एंड जो सारे फ्रूट्स के स्टॉल थे, मड पॉट्स थे, क्लोथ्स थे, उन सारों को ही क्या कर दिया, स्मैश डाउन कर दिया. People ran helter skelter in panic. Or जो people थे, helter skelter means they started moving here and there. So for helter skelter you can write moving here and there. Okay. Yeah. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. And now, पहले तो town में enter किया elephant ने. Now that the elephant, they entered into the school ground. School ground में क्या कर रहे थे? Children were playing, they were breaking through the brick wall. मतलब they were playing, and what did this elephant did? वो break किया उसने पूरे wall को, school के ground के wall को, and then he entered the school premises. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tightly because they were scared, right? So what did they did? They ran into the classroom and they shut the door. The beast grunted and wandered around, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. तो उसने क्या किया, वो जो बीस्ट मतलब क्या यहाँ पे, the animal. So what did the animal did? The animal grunted and wandered about. What do you mean by grunted? Grunted means making a loud voice. देखो, grunted means making a loud voice. So that animal, elephant, उसने क्या किया, जोर से आवाज निकाली and then he wandered. Wandered मतलब क्या, यहाँ वहाँ पे घूमना. तो उसने क्या किया, पहले तो जोर से आवाज निकाली and फिर वो यहाँ वहाँ घूम रहा था. and क्या किया, जो स्कूल ग्राउंड पे जो फुटबॉल की गोल पोस्ट थी, फुटबॉल में जो गोल करने के लिए आप पोस्ट बनाते हो ना, वो उसने डिस्ट्रॉय कर दी. फिर वॉलीबॉल की जो नेट रहती है खेलने के लिए, उसको टेयर डाउन कर दिया, फाड़ दिया. एंड फिर जो पानी के लिए वहां पे ड्रम रखा था, उसको भी किक मारने लगे. एंड जो श्रब्स थे छोटे छोटे, उसको भी अपरूट कर दिया, वहां से निकाल दिया. इज इट क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? Okay. Meanwhile, all the teachers had climbed down to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the animals. Depredations मतलब क्या? An act of acting. डेप्रिडेशंस का मीनिंग लिखो बच्चा. एन एक्ट ऑफ एक्टिंग, कि ये सारा जो एनिमल एक्टिंग कर रहा था ना, ये सारा जो चीजें कर रहा था, वो टीचर्स कहाँ से देख रहे थे? वो लोग टेरेस पे जाके वहां से देख रहे थे. व्हाई? बिकॉज दे वर हेल्पलेस, दे डिडंट न्यू how to control this elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. Why? Because सारे ही वो elephant से डर गए थे. तो कोई भी आपको रास्ते पे नहीं दिखाई दे रहा था. There was not even a soul means there was no one on the ground. The entire road was empty. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I didn't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held its trunk. तो यहाँ पे जो ये है हमारा क्या है, the poem, the writer who is narrating है, यहाँ पे ईश्वर चरण जो है वो क्या बता रहे हैं, that I was studying in junior class at that time and मुझे नहीं पता, but suddenly I saw that someone आ गया मेरे ऊपर. आई ग्रैब द केन. तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि जो टीचर के पास केन थी वो उन्होंने लिया एंड क्या किया, ही रैन डाउन द स्टेयर्स, कि वो नीचे चले गए, भाग गए नीचे की तरफ.
द एलिफेंट ग्रंटेड, ग्रंटेड मतलब क्या, ऊपर जो मैंने बताया, टू मेक अ नॉइज। तो एलिफेंट ने आवाज निकाली एंड मेनिंगसली, व्हाट डू यू मीन बाय मेनिंगसली, एकदम थ्रेटिंगली, एकदम डरावना फेस करते हुए, swung a branch of tree which held its in its trunk, एंड उसने क्या किया, एकदम डरावनी आवाज निकालते हुए, जो एलिफेंट था उसने अपने ट्रंक में एक ब्रांच ऑफ ट्री ले लिया। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. And फिर उसने अपना feet stamp किया, जैसे ही feet stamp किया, पूरा धूल और मिट्टी सब उड़ने लगा. It looked very frightening, but I moved slowly towards it, stick in my hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. तो ये ईश्वरचरण जो है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं स्टिक लेके चला गया था नीचे, and I went towards the elephant and I slowly went towards him. So people were watching me as they were hypnotized. Hypnotized मतलब क्या, किसी के influence में आ जाना, कि लोग ऊपर में छत से ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया हो, एंड ये पूरा सीन वो लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि ये जो एलिफेंट था वो एकदम गुस्से से मेरे तरफ देख रहा था। रेड आइड मींस ही वाज वेरी एंग्री एंड ही वाज ऑलमोस्ट रेडी, वो मेरे तरफ ही आने वाला था। उसने अपना ट्रंक भी उठा लिया था एंड ही ट्रम्पटेड लाउडली। ट्रम्पटेड मतलब क्या, जोर से आवाज निकालना। इज इट क्लियर बच्चा, यहाँ तक अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. At that moment, I moved forward and, mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it writhed from head to toe and collapsed. And इन्होंने क्या किया? At that moment, I moved forward. वो थोड़ा गए elephant की तरफ, and with all of his force, mustering मतलब क्या, putting together. जितना भी फोर्स था, जितना भी ताकत था, मस्टरिंग इज पुटिंग टुगेदर, वो सारा ही उन्होंने डाला। एंड वैक्ट इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक। एंड क्या किया उन्होंने, वैक्ट मतलब क्या, हिट, टू हिट। तो उन्होंने जो हाथी था उसका जो थर्ड टो नेल था ना, उसके ऊपर जोर से वो लकड़ी से मारा। तो वो बीस्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एनिमल। द एनिमल लुक स्टन्ड, कि एक सेकंड के लिए वो एकदम स्टन्ड हो गया था, एकदम शॉक्ड हो गया था। बट थोड़े ही टाइम के बाद ही स्टार्टेड शिवरिंग फ्रॉम हेड टू टो एंड वो कोलैप्स होके गिर गया। तो ये क्या किया ईश्वरचरण, ये जो थे ईश्वरन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एलिफेंट के थर्ड नेल पे मार दिया विद दैट स्टिक। At that point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. इतना ही बोला उसने, ठीक है। ये पूरी स्टोरी नरेट की महेंद्र को, एंड फिर सडनली क्या बोला महेंद्र को कि अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, कि इतना ही बोल के वो स्टोरी को बीच में रुका देते थे। एंड फिर क्या बोलते थे महेंद्र को, वेट वेट नाउ आई विल लाइट अप द गैस, मैं गैस चालू करता हूँ एंड मैं थोड़ा डिनर बनाना स्टार्ट करता हूँ, डिनर खाने को थोड़ा गर्म करना स्टार्ट करता हूँ। अभी आपको कैसे लगेगा, आपको ऐसी मस्त स्टोरी बता रहे हैं एंड बीच में ही अचानक बोलते चलो मैं जाता हूँ खाना बनाने को। So Mahendra would had been listening with rapt attention, would be left hanging. Rapt attention मतलब क्या, पूरा ध्यान देके वो स्टोरी सुनते थे। So rapt attention you can write completely fascinated. Okay, he was completely fascinated by what he was telling him. And then वो अचानक ही he would left hanging, से यहाँ पे लिखा है with rapt attention would be left hanging, पर वो कैसे करते थे, उसको बीच में ही ऐसे स्टोरी को अचानक छोड़ के चले जाते थे। When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, वो क्या करते थे ईश्वरन, वीव आउट, राइट। वीव आउट का मैंने क्या मीनिंग बताया था, स्टोरी बनाना। तो यहाँ पे वही बताया कि वो जो स्टोरी बीच में छोड़ जाते थे ना, उसको वापस कंटिन्यू नहीं करते थे। सी यहाँ पे लिखा है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, कि जहाँ पे उन्होंने वो स्टोरी को छोड़ा था वहां से वो उसे कंटिन्यू नहीं करते थे।
Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. And Mahendra को हर बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि भाई आपने यहाँ पे स्टोरी बीच में रुकाई थी, अब यहाँ से कंटिन्यू करो, आपने तो मुझे कंक्लूजन लास्ट का एंडिंग बताया ही नहीं वैसे. Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. And इतना मस्त स्टोरी बताने के बाद वो एकदम कैजुअली क्या बोलते थे, हाँ फिर क्या हुआ, वो एलिफेंट को तो 2 दिन के बाद वो गिर गया था, मैंने उसे मारा, एंड 2 दिन के बाद वो जंगल वाला माहूत आता था एंड उसको लेके चला जाता था. एकदम कैजुअली उसको बोल देते थे एंडिंग. Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? फिर ईश्वरन को क्यूरियोसिटी होता था कि आपने पर उसे कैसे लाया वापस, कैसे वो होश में आया. It has something to do with a Japanese art, I think, sir. क्या नाम है उसका, कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड. एंड फिर वो एकदम कैजुअली उसको बोलते थे कि कुछ नहीं, इसे तो मैं जूजित्सु, ये देखो बच्चा यहाँ पे मैंने पिक्चर बताया, जूजित्सु मतलब ऐसा फाइट करना. तो वो बोलता था इसे शायद कराटे या जूजित्सु बोलते हैं, मुझे उसका थोड़ा बहुत आइडिया था तो मैंने वैसे किया एंड वो हाथी वहां पे गिर गया, ऐसे एकदम कैजुअली बोल देते थे. I had read it about somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. And फिर वो बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको जूजित्सु बोलते हैं, जो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए आपका एक पार्ट ऑफ बॉडी को क्या करता है, पैरालाइज कर देता है. समझा बच्चा यहाँ तक सो फार? Yes, ma'am. Okay. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror, and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the imitable way in which it was told. कि हमेशा ये जो ईश्वरन है ना, वो महेंद्र को कोई ना कोई स्टोरी बताते थे. कभी वो एडवेंचरस होती थी, कभी हॉरर होती थी, डरावनी होती थी, एंड कभी कभी क्या होती थी, एकदम सस्पेंस वाली होती थी. एंड महेंद्र जो थे ना, वो भी एकदम अच्छे से उसको एंजॉय करते थे हमेशा. क्यों? बिकॉज जिस तरीके से ईश्वरन वो स्टोरी बोलते थे ना, इनइमिटेबल वे, मतलब जैसे वो एक्टिंग, इनइमिटेबल मतलब किसी की एक्टिंग करना. तो जैसे वो ऐसे एक्टिंग करके यूनिक वे में बोलते थे ना, वही चीज महेंद्र को अच्छी लगती थी एंड वो उनकी सारी स्टोरी सुनते थे. Ishwaran seemed to be more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. ठीक है, वो क्या बताते कि उनके पास टीवी नहीं था, पर वो उसकी एब्सेंस पूरी कर लेते थे. टीवी हम क्यों देखते हैं बच्चा, अपने एंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास करने के लिए, हमारा एंटरटेनमेंट हो इसीलिए. बट महेंद्र क्या बोलता है कि मुझे टीवी की जरूरत ही नहीं थी, ईश्वरन जो थे वो उसकी कमी पूरी कर देते थे. वही खुद इतना इंटरेस्टिंगली मेरा मुझे एंजॉयमेंट दिलाते थे, मेरा एंटरटेनमेंट करते थे कि मुझे टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ी. One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestor today, sir." Spirits मतलब क्या? Soul of our dead. पता है हमारे में वे भी ऐसे होता है ना, हमारे में हम क्या करते हैं, श्राद्ध जिसे हम बोलते हैं. श्राद्ध के टाइम हम क्या करते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स है उनके तिथि के हिसाब से हम अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं ना उनके लिए, फिर हम बाहर रखते हैं and वो उनको खिलाते हैं, क्रो आके खाता Yes, है, राइट. ma'am. कबूतर गाय को. या कबूतर होता है, गाय को होता है. तो ये हमारे हिंदू कल्चर में माना जाता है ना श्राद्ध. तो वो वही बताते हैं कि आज है ना हमारे लिए क्या है, ऑस्पिशियस डे है, बहुत अच्छा दिन है जहाँ पे हम हमारे अच्छा अच्छा डेलिकेसीज बनाते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं एंड फिर वो हमारे एंसेस्टर्स के लिए उनको देते हैं, उनको सर्व करते हैं. तो क्या मैं आज आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं, ऐसे वो ईश्वरन बोलते हैं. दैट नाइट महेंद्र enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills मतलब क्या, उसकी कुकिंग स्किल्स. तो उस दिन पता है अच्छे अच्छे खाने बनते
होता है ना, जो अब हमारे एंसेस्टर्स को पसंद होते हैं, तो उस दिन हमारा पेट कैसे होता है, एकदम फुल होता है, बिकॉज क्यों, हमने अच्छा अच्छा खाना खाया रहता है। तो वैसे ही महेंद्र के साथ हुआ बच्चा कि उसने अच्छा अच्छा खाना खाया था, तो उसका पेट एकदम फुल था। एंड वो हमेशा ईश्वरन की तारीफ करते थे, उसकी जो कुकिंग स्किल है ना, उसकी तारीफ करते थे। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. कि यहाँ पे क्या बताया है, he seemed very pleased, वो हमेशा खुश थे, बट कभी कभी है ना, वो उसको एकदम ऐसे सुपर नेचुरल मतलब क्या बच्चा, जो घोस्ट से रिलेटेड या स्पिरिट से रिलेटेड, भूत से रिलेटेड स्टोरीज होती थी ना, वो उसको बताते थे। एंड वो सुन के ही महेंद्र है ना, वो क्या होता था, वो डर जाता था। देखो आगे लिखा है, यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया we are occupying was once a burial ground, he started. And फिर वो उसे बताने लगे कि यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं ना सर, ये क्या था पहले, ब्यूरल ग्राउंड था। ब्यूरल ग्राउंड मतलब क्या बच्चा, कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं ना, जहाँ पे डेड बॉडी को रखते हैं, वैसा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूरल ग्राउंड। समझा बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरल ग्राउंड? बच्चा, इज इट अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरल ग्राउंड? या तो ईश्वरन उसे वही बताते हैं कि ये जो एरिया है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, वो क्या है, पहले एक ब्यूरल ग्राउंड था, जहाँ पे ऐसे कब्रिस्तान था, वैसे एरिया में अभी हम, यहाँ पे हमारी फैक्ट्री बनाई गई है वैसे। महेंद्र was jerked out of pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। बेचारे ने इतना अच्छा satisfying meal, एकदम अच्छा खासा पेट भर के खाना खाया था, और जैसे उसने ये बात सुनी, वो एकदम डर गया। reverie is a state of being pleasant lost in one thought। उसे हम बोलते हैं रेवरी, मतलब वो रेवरी विज अ प्लेस, लिखो, अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन वन थॉट्स, अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन सम, मतलब क्या, किसी के थॉट्स में मतलब गुम हो जाना, मग्न हो जाना, जिसे हम बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं रेवरी। तो वो तो एकदम खुश था, अच्छा अच्छा खाना खाया था, पेट भरा हुआ था, बट जैसे ही वो ये चीज सुनता है, वो एकदम डर जाता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones। ईश्वरन कंटिन्यू, एंड वो फिर अपनी डरावनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं, पहले तो वो बोलते हैं कि ये जो हमारा फैक्ट्री है, वो एक कब्रिस्तान पे बना हुआ है। फिर आगे वो उसे कैसे डराते हैं, वो उसे बोलते हैं कि मैं जब यहाँ वहां जाता हूँ ना, तो मैंने एक ह्यूमन स्कल देखा था। ह्यूमन स्कल मतलब क्या, एकदम डेड बॉडी जिसे बोलते हैं ना, या तो वो क्या बोलते हैं, मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन स्कल गिरा हुआ देखा रोड पे। एंड इवन डेड बॉडी मतलब ह्यूमन स्कल इज वो जो हड्डियों का पुतला जिसे बोलते हैं ना, हम देखा है, आप लोग ने हॉरर मूवीज में बताते हैं एकदम Yes, ma'am. स्केलेटन, या जो ऐसा स्केलेटन जैसा रहता है वो। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ऑन द वे जा रहा था, एंड मैंने पूरा रोड पे ह्यूमन स्कल देखा। एंड मैं तो कितने बार ऐसे स्कल्स और बोन्स के सामने आया हूँ, वैसे उसको और डराते हैं। Is it okay ना बच्चा, if I continue for more than more 5 minutes, is it okay? We'll complete in 2 slides. Okay, ma'am. Okay. See, तो वो उसे बताते कि पूरे रोड पे मैंने स्कल देखा था, एंड यहाँ पे बोन्स देखे थे। यहाँ पे सी, इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज ईश्वरन, एंड ही इज सेइंग दैट दिस रोड वाज कब्रिस्तान, बरेड ग्राउंड था, एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे स्कल्स मैंने देखे हैं। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। एंड फिर वो बोलते कि आपको पता है, कभी कभी तो रात को मुझे भूत भी दिखते हैं वैसे। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाय दिस थिंग सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, but one horrible ghost of a woman which appears off and on the middle night during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in his arms. फिर वो क्या बोलते हैं ईश्वरन, that I am not easily frightened by this thing sir, कि मैं ये सारी चीजों से क्या इतना अच्छे इजीली डर नहीं जाता हूँ, मैं एक brave fellow हूँ। But one horrible ghost of a woman which appear off at the midnight, पर वो क्या बोलते हैं, midnight, midnight मतलब क्या बच्चा, 12 बजे के बाद, ड्यूरिंग द फुल मून, फुल मून जिसे हम बोलते हैं ना, पूनम की रात, पूनम जिसे हम बोलते हैं, पूनम बोलते हैं ना, पूनम इज फुल डे, फुल मून रहता है वहां पे।
तो वो बोलते हैं पूनम की रात को आफ्टर 12 o'clock मुझे यहाँ पे ना रात को एक वुमेन दिखती है, उसके बाल ऐसे अगली होते हैं एंड मैटेड हेयर होते हैं एंड उसका फेस भी एकदम क्या होता है, श्रिवल्ड फेस होता है। श्रिवल्ड मतलब क्या, एकदम डरावना फेस होता है उसका। तो वो उसे ऐसे बताते हैं। उसको देख के मुझे डर लगता है। होल्डिंग अ फ्यूटस इन इट्स आर्म, फ्यूटस इज अ स्मॉल अनबॉर्न बेबी। तो वो ऐसे आती है रात को एंड मुझे उसको देख के बड़ा ही डर लगता है। ऐसे कौन बोलता है, ईश्वरन महेंद्र को बोलते हैं। इज इट क्लियर बच्चा यहाँ तक? Yes. या अब वो उन्हें डरावनी स्टोरी बोलने लग गए वैसे। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply, "You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghost or spirit. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense." फिर महेंद्र जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि तुम पागल हो गए, आर यू क्रेजी ईश्वरन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये घोस्ट एंड स्पिरिट्स ऐसा सब रियल लाइफ में नहीं होता। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फिगमेंट? फिगमेंट मतलब एक इमेजिनरी एलिमेंट है, कि ये सब इमेजिनरी एलिमेंट है, ये सच में ऐसा नहीं होता। और वो क्या बोलते हैं, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइन, कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो दिमाग है, वो सारा एग्जामाइन करो एक बार डॉक्टर के पास, चेक करा के आओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। इतना समझा बच्चा यहाँ तक? Yes, ma'am.